کیا سچویشن چل رہی ہے اس ٹائم کشمیر میں؟ زندگی جو ہے کشمیر میں بحال ہو چکی، دکانیں کھل گئی ہیں، ٹریفک چل گئی ہے، زندگی نارمل کی طرف آ گئی۔ جو کچھ حکومت پاکستان کر سکتی تھی وہ کیا، لیکن اس کے باوجود ان کی ہر درمی اپنی رہی۔ دھرنا ہو رہا ہے لیکن اس میں لوگوں کی تعداد بہت زیادہ کم ہو گئی ہے۔ انہوں نے یہ کہا کہ ساڑی گل ہو گئی جی وہ تو بالکل، اس کے بعد کوئی زیادہ کیمپین نہیں کی تھی۔ نواز شریف صاحب نے ٹوٹل 5 یا 6 جلسے کیے تھے جو بہت ناکافی ہیں۔ اصل میں تو وہ جماعت ایکٹیو ہے نا، وہ تحریک استحکام پاکستان پارٹی ہے۔ اصل میں تو وہ جماعت ایکٹیو ہے نا، وہ تحریک استحکام پاکستان پارٹی ہے۔ الیاس تنویر صاحب بھی ان کے ساتھ مل گئے ہیں اور بھی بہت سارے لوگ ہیں۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کے ساتھ رمشا عارف اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام وی ٹاک۔ عمار صاحب میرے ساتھ موجود ہیں۔ ناظرین، آج جن ٹاپکس پہ بات کریں گے، ہم نے دیکھا جی بی میں الیکشنز ہوئے، پیپلز پارٹی نے بڑے اچھے سے کیمپین کی۔ اب جو ہے وہ کشمیر میں الیکشنز ہونے جا رہے ہیں، لیکن فوٹیجز جو آ رہی ہیں کشمیر سے وہ دکھائی تو اس طرح سے دے رہا ہے کہ اس ٹائم جو ہے وہ نون لیگ بہت ایکٹیو ہو گئی ہے، وہاں پہ جلسے کیے جا رہے ہیں، جلوس نکالے جا رہے ہیں۔ ذرا اس پہ بات کریں گے کہ اب آگے کیا ہوگا کشمیر کے الیکشنز پہ، اور ساتھ ہی ساتھ بات کریں گے کہ تحریک انصاف کے حوالے سے عمران خان کی رہائی کے لیے تحریک انصاف کیا کر رہی ہے، کیونکہ شیر افضل مروت نے ایک بڑا اہم انکشاف کیا ہے کہ عمران خان کے وکلا نے کتنی فیس لی ہے عمران خان کے کیسز کے لیے۔ ذرا اس پہ بات کریں گے۔ اور ایک جو بل آیا ہے کے پی اسمبلی میں، جو وہاں کے ایم پی ایز ہیں ان کے لیے کیا بینیفٹس ہوں گے، تو وہ بل تو چلے ایک طرف ہے، لیکن وہاں پہ صوبے میں جو تعلیم کا حال ہے، جو یونیورسٹیز کا حال ہے، اگر وہ دیکھ لیں تو پتہ نہیں سہیل آفریدی صاحب نے صوبے کو کس کے رحم و کرم پہ چھوڑ دیا۔ ذرا اس پہ بات کریں گے کہ تھوڑی توجہ جو ہے وہ تعلیم پہ بھی دی جائے، اس پہ بات ہوگی۔ اور جیو کے حوالے سے اگر ہم بات کریں، ہم اکثر پروگرام میں یہ بات کرتے ہیں، ایک بڑا ادارہ ہے، انہوں نے ایک اچھا انیشیٹو لیا، معافی مانگ لی ہے، اور باقاعدہ طور پہ کل ان کے نیوز پیپر میں بھی یہ معافی دی گئی، اور سب نے جو ہے وہ اس چیز کو بہت پریز کیا۔ اس پہ بات ہوگی، اور پروگرام کے آخر میں جا کے بات کریں گے، گرمی بہت شدید ہو چکی ہے، کلائمیٹ چینج جو ہے وہ اتنا ریپڈلی ہو رہا ہے پاکستان کے اندر، اور اب کہا جا رہا ہے کہ ٹیمپریچر ابو 50 جائے گا۔ اگر ٹیمپریچر اتنا ہوگا تو حکومت پاکستان اس حوالے سے کلائمیٹ چینج کے حوالے سے کیا اقدامات کر رہی ہے، اور چائنا نے اس کے لیے ایک بڑا اچھا اقدام کیا ہے، ذرا اس پہ بھی بات کریں گے آج کے پروگرام میں۔ ویلکم ٹو دا شو عمار صاحب۔ سب سے پہلے تو ذرا کشمیر کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں۔ عمار صاحب، آپ اکثر پروگرام کرتے رہتے ہیں کشمیر کے حوالے سے، کیا سچویشن چل رہی ہے اس ٹائم کشمیر میں؟ اچھا بھائی، ابھی تک یہ ہمیں خدشہ یہ تھا کہ راولہ کوٹ میں جہاں پہ دھرنا وغیرہ ہو رہا ہے، حالات خراب تھے، وہاں پر الیکشن نہیں ہوں گے یا انہیں پوسٹ پون کر دیا جائے گا۔ ابھی تک ایسی کوئی بات نہیں ہے، اس کا مطلب ہے کہ ان نشستوں پر بھی الیکشن ہو رہا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ زندگی جو ہے کشمیر میں بحال ہو چکی بھی ہے۔ شاید یہ تھوڑا سا ایریا ہے راولہ کوٹ کا جہاں پر ابھی اشیاء خورونوش کا مسئلہ ہے، لیکن دکانیں کھل گئی ہیں، ٹریفک چل گئی ہے، زندگی نارمل کی طرف آ گئی۔ ان حالات میں جس نے بھی یہ فیصلہ کیا کہ الیکشن لازمی کرانا ہے، اس شخص کو بہت زیادہ کریڈٹ دینا چاہیے، اس لیے کہ اس طرح کے مسائل کا، جس طرح کے مسائل پیدا ہو رہے تھے جوائنٹ ایکشن کمیٹی کی وجہ سے، اس کا حل انتخاب ہی تھا۔ اور انتخاب میں اگر ہم دیکھیں کہ عوامی نمائندوں کو حق مل جاتا ہے، وہ بہتر فیصلہ ساز ہوتے ہیں، ان کے ہاتھ عوام کی نبض پر ہوتے ہیں۔ جوائنٹ ایکشن کمیٹی والا معاملہ جو ہے عجیب و غریب رخ اختیار کرتا رہا۔ انیشلی یہ مطالبات لگے، پھر اس کے بعد ذاتیات لگے، پھر اس کے بعد ہمیں یوں لگا کہ جیسے یہ بات ماننا ہی نہیں چاہتے، جو کچھ حکومت پاکستان کر سکتی تھی وہ کیا، لیکن اس کے باوجود ان کی ہر درمی اپنی رہی۔ اس میں ایک اور اینگل یہ آ گیا کہ برطانیہ اور یورپ میں بہت سارے لوگ ان کے حق میں نکل آئے، اور انہوں نے کچھ ایسی باتیں کی جو انہیں نہیں کرنی چاہیے تھی۔ تو وہ ایک یہ معاملہ اب بکھرتا جا رہا ہے، پھیلتا جا رہا ہے۔ لیکن اب جہاں راولہ کوٹ میں سچویشن ہے، اب ان کے لوگوں کی تعداد جو دھرنے میں تھے، دھرنا ہو رہا ہے لیکن اس میں لوگوں کی تعداد بہت زیادہ کم ہو گئی ہے۔ الیکشن ہے، پولیٹیکل ایکٹیویٹی شروع ہو گئی ہے، امیدوار اپنی کیمپین کر رہے ہیں، جو کہ بہت ہی اچھی بات ہے، ایسا ہی ہونا چاہیے، اور لوگوں کو ڈائیورژن ملنی چاہیے تھی، اور جوائنٹ ایکشن کمیٹی کو اگر کوئی سیف ایگزٹ چاہیے تو انہیں دینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اچھا عمار صاحب، مسلم لیگ نون کی اگر میں بات کروں تو کہا یہ جاتا ہے کہ وہاں ان کا اسٹرانگ ہولڈ بھی ہے، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ نون لیگ نے جی بی کے الیکشن کے بعد پیپلز پارٹی سے کچھ سیکھا ہے؟ کیونکہ میں بھی فوٹیجز دیکھ رہی تھی، سعد رفیق صاحب، کیپٹن صفدر بھی وہاں پہ پہنچے ہوئے ہیں، تو بہترین کیمپین جاری ہے اس ٹائم پہ۔ اچھا
सीखा है तो मतलब 2 इलेक्शंस की बात कर लेते हैं। 2024 के कौमी इलेक्शन की बात कर लें, इन्होंने ये कहा कि साड़ी गल हो गई जी, वो तो बिल्कुल। उसके बाद कोई ज़्यादा कैंपेन नहीं की थी। नवाज शरीफ साहब ने टोटल 5 या 6 जलसे किए थे, जो बहुत नाकाफी जी, है। जी, जी। इन्हें तो हर हल्के में हमें निकलना जाना चाहिए था, बिल्कुल लेकिन ऐसा वो कैंपेन नहीं की। उन्होंने कहा साड़ी गाल हो गई, लेकिन फिर उसके बाद रिजल्ट डिजायर्ड नहीं आए। जी। ये कहते थे हम 2/3 मेजॉरिटी लेंगे, वो नहीं लेकिन मिली। वो नहीं मिला। इसी तरह अभी जीबी के इलेक्शन हमने देखे। जीबी के इलेक्शन में कहा यही गया कि जिसकी विफाक में हुकूमत होती है वही उसी की हुकूमत होती है जीबी में, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। पीपल्स पार्टी ने अपनी हुकूमत बनाई। ये नहीं है कि नून लीग ने मेहनत नहीं की, नून लीग ने मेहनत की जीबी में, लेकिन क्रेडिट देना चाहिए बिलावल भुट्टो को कि उन्होंने ज़्यादा बेहतर कैंपेन की है। अब आज़ाद कश्मीर में हम ये देख रहे हैं कि नून लीग बड़ी सरगर्मी से कैंपेन कर रही है। सारे रहनुमा मिलकर लगे हुए हैं, कैप्टन सफदर भी हैं और खैसा भी इसमें लगे हुए हैं, और भी बहुत सारे लोग इस कैंपेन का हिस्सा हैं। कैंपेन तो अभी तक अच्छी कर रही है। नून लीग का पलड़ा भी भारी है। पीपल्स पार्टी की कैंपेन हमें उस तरह की नज़र नहीं आई जिस तरह की जीबी की कैंपेन नज़र आई है। एक और ख़बर भी हमने सुनी है कि मरीम नवाज़ और नवाज शरीफ साहब दोनों जीबी की कैंपेन में हिस्सा लेने जाएंगे। अच्छा। जल्द से करेंगे। ये अगर होता है तो ये बड़ी वोटर्स के लिए बूस्ट की बात होती है। लेकिन कुछ मरीम नवाज़ की अलालत के हवाले से भी हम बात सुन रहे हैं, तो कोई हतमी तौर पे नहीं है। लेकिन अगर नवाज़ शरीफ और मरीम नवाज़ वहाँ पर जाते हैं, पॉलिटिकल कैंपेन का हिस्सा बनते हैं, तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी। अच्छा इम्पैक्ट क्रिएट होगा और अगले आने वाले हफ्तों में ये चीज़ नज़र भी आ जाएगी। अच्छा, नून लीग और पीपल्स पार्टी के अलावा भी कोई और जमात एक्टिव है? हाँ, असल में तो वो जमात एक्टिव है ना, वो तहरीक इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी है। और आपको पता है कि टोटल नशिस्तें हैं 45, 33 कश्मीर के अंदर हैं, 12 महाजरीन की नशिस्तें हैं। और नून लीग का दावा है, मेरी उनके ज़राए से बात हुई, कि कश्मीर की जो 33 नशिस्तें हैं ना, उनके 22 पे वो बड़े स्ट्रॉन्ग हैं, लेकिन कम से कम 18 तो वो कश्मीर से जीत लेंगे। अच्छा, महाजरीन की नशिस्तें भी ज़्यादातर पंजाब में ही हैं, तो ये तवक्को होती है कि वो जीतेंगे। तो फिर तो ये लैंडस्लाइड विक्ट्री होगी, लेकिन ये विक्ट्री से इलेक्शन से पहले के दावे हैं। तो ये हतमी तौर पे बात नहीं है। दूसरी जानिब अलीम खान साहब की पार्टी वो जीबी में भी इम्पोर्टेंट बन गई है, और अब यहाँ पर भी 45 में से 38 नशिस्तों पर उन्होंने कैंडिडेट खड़े किए हैं। और उनसे बात करें तो वो तो कहते हैं कि इस दफ़ा हमारे पास इलेक्टेबल्स बहुत हैं। इलेक्टेबल हमारी सियासत में इम्पोर्टेंट है, बिल्कुल ऐसा ही है। इलियास तनवीर साहब भी उनके साथ मिल गए हैं, और भी बहुत सारे लोग हैं। तो वो अपने तौर पर अपना केस बहुत स्ट्रॉन्ग पेश कर रहे हैं। मेरे ख्याल में ये तो नहीं होगा कि इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी कोई हुकूमत बनाने की पोजीशन में होगी, लेकिन ये उनका पहला इलेक्शन होगा। उसके अंदर अगर वो चंद नशिस्तें भी लेने में कामयाब हो जाती हैं तो ये उनके पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ी कीमती बात होगी। टफ टाइम देने के लिए तैयार हैं। अच्छा अमार साहब, अब ज़रा दूसरी स्टोरी की तरफ मैं आती हूँ, वो कंप्लीट नहीं होती अगर खान साहब का जिक्र ना किया जाए। तो वो अब आपको क्या लगता है, क्योंकि बहुत टाइम हो गया खान साहब को जेल में, और आज मैं शेर अफजल मरवत साहब को सुन रही थी, उन्होंने कहा कि 1 अरब से ज़ायद पैसे लिए गए हैं, इमरान खान के वकला ने पैसे लिए हैं, उनकी केसेस की फ़ीस ली है। ये तो इतने सारे पैसे कहाँ से आए? तहरीक इंसाफ कहती है वैसे हम गरीब हैं, कोई हमें पैसे नहीं देता, ये वकला ने इतने सारे पैसे, ये क्या तहरीक इंसाफ ने दिए हैं? अच्छा, शेर अफजल मरवत साहब ज़ाहिर है पॉपुलर आदमी है, हर बात उनकी दुरुस्त नहीं होती, वो एग्जैजरेट भी करते हैं। मेरा नहीं ख्याल 1 अरब रुपए दिए होंगे। ये उस पार्टी की जिक्र हो रही है जिसके सरबराह ने कभी किसी को चाय नहीं पूछी। हमारे सामने कई दफ़ा ऐसा हुआ है, जाते थे बनी गाला, हाँ, तो वो सामने खाना पीना खा के किसी के सामने भी उठ के हाथ जोड़ के धो जाते थे। रिपोर्टर बेचारे देखते ही रहते थे, तो उन्हें दूसरी सियासी पार्टियों की आदत थी। तो ये, और दूसरी बात ये कि अचानक जो वकला सारे शामिल किए गए ना, आप कुछ अर्से पहले क्या आप जानते थे बैरिस्टर गौहर के बारे में, या सलमान अकरम राजा का तहरीक इंसाफ के साथ रोल, और बहुत सारे। तो ये वकला लोग कहते हैं कि शामिल ही इसलिए किए गए हैं कि ये फ्री इमरान खान के मुकदमे लड़ेंगे, और यही इनका मकसद है। उससे पहले तो इनका नाम कभी भी नहीं आया। तो ये 1 अरब रुपया तहरीक इंसाफ ने वकला को दिया होगा, मैं इस खबर पे यकीन नहीं कर सकता। अगर ये खबर ये होती कि 1 अरब रुपया वकला से लिया होगा
मैं इस खबर पे यकीन कर लेता वैसे हूँ। पैसा बहुत है हमारे साहब उनके पास। अभी आपने वो केपी वाला बिल देखा है ना, ब्लू पासपोर्ट और इतनी सारी मराहत, लेकिन मैं ये देख रही थी कि फिर वो कहा गया नजर षानी करेंगे, लेकिन मैं लगता आपको नहीं है। थोड़ा सा उसमें जी, जी, बताऊँ, जी। उस बिल के हवाले से बहुत बात हुई है, उसमें सिर्फ पीटीआई शामिल नहीं है, बाकी ये जमातें हाँ हाँ बिल्कुल ऐसे ही। उसमें नून लीग भी शामिल है, बाकी सारी जमातें भी। और जब इस देखें, इस बात को समझें कि जब भी अपना मफाद होता है ना, सारी सियासी जमातें इकट्ठी हो जाती बिल्कुल हैं। ठीक आप बात देख की है। लीजिए कि बिजली के जो आईपीपीस हैं, तो उसके हवाले से सारी जमातों के सारी अपनी मुख्त, और आप उनका पब्लिक पोस्टर देखें बिल्कुल डिफरेंट है, वो जी। उधर बात कर रहे हैं, लेकिन ये जो कार्टल्स बन जाते हैं उसमें सारे एक दूसरे का दिफा। शुगर मिलें किस पार्टी की नहीं है, बिल्कुल सही बात है, सारी पार्टीज की हैं। लेकिन सारी वहाँ पर कुछ और करेंगे, वहाँ पर कभी एक दूसरे के हक पर आंच नहीं आने देंगे। लेकिन जब इस तरह होता है पॉलिटिकली, आप देखें तो पब्लिक कंजम्पशन के लिए नारे भी लगाते हैं। जो केपीके में हुआ उसमें मेजर रोल पीटीआई का है, लेकिन बाकी सारी जमातें भी उनके साथ शामिल हैं, जिसमें नून लीग सरे फहरिस्त है। बिल्कुल ऐसे ही है। सोबिया साहिबा ने तो जी। सबसे पहले उसमें हिस्सा लिया था। अमार साहब ये करें, इनको कोई मना नहीं कर रहा, लेकिन कुछ तवज्जो थोड़ी सी सूबे पे भी दे लें। बेसिक तालीम एक आपकी बेसिक नेसेसिटी है, और लेकिन तालीम का इतना बुरा हाल है। मैं वो आगे एक पोस्टर देख रही थी, किसी ने ट्वीट किया हुआ था कि पेशावर यूनिवर्सिटी को ताले लग चुके हैं। ताले अच्छा। लगने की वजह क्या है कि जी वहाँ जो मुलाजमीन हैं उनको तनख्वाहें नहीं दी गई, और बच्चों के साथ भी कोई प्रॉब्लम्स फेस करने पड़े हैं बच्चों को भी। तो ये कैसे चलेगा फिर सूबा? ये उसी सूरत में होता है जब आप ऐसे लोगों को ले आते हैं जो जिन्हें पता होता है कि उन्होंने दूसरी दफ़ा सेलेक्ट नहीं होना, सियासत से उनका ताल्लुक़ नहीं है, वो पैराशूट के ज़रिए सियासत में आए हैं और इसके बाद उनकी इनिंग ख़त्म हो जाती है। वो उस वक्त भेड़िए बन जाते हैं। उन्हें पता है कि इस 5 साल के अंदर जो कमाई करनी है वो कमाई करनी है। आपके ख़्याल में उन्हें अवाम के मसाइल का कोई इदराक है? बिल्कुल नहीं। और अगर इदराक भी हो तो क्या वो अवाम के मसाइल हल करना चाहते हैं? उनके पास अपने कामों से ही फुर्सत नहीं है। केपीके में कहा यह गया था तालीम का सुनामी आएगा, लेकिन यूनिवर्सिटियों की ज़मीनें बेच दी गई, वहाँ पर 2-2 महीने से तनख्वाहें नहीं मिली, और फिर जो है डिग्रियों के हवाले से बहुत अजीबोगरीब बातें मसाइल सुनने हैं, में जी। आ रही हैं। मसलन वाइस चांसलर्स अलग ऐलान कह रहे हैं कि भाई हमारे से तनख्वाह ना मांगे, हमारे पास कोई तनख्वाह नहीं। जी। तो ये अगर वहाँ पर तालीम का हाल है तो ये नहायत अफसोसनाक सूरत हाल है। तो वो जो वज़ीर आला टिकटॉक बना रहा है, वो जो वज़ीर आला इमरान खान की रिहाई के अलावा कोई बात नहीं करता, उसे पता होना चाहिए 4 करोड़ लोगों का सूबा, तुम जिम्मेदार हो। खुदा के लिए इनकी तालीम, सेहत, रोज़गार के बारे में भी कुछ सोच लो। वो 4 करोड़ का सोचते हैं कि मेरे 4 करोड़ व्यूज़ कैसे आ जाएंगे टिकटॉक पे, और नहीं, 4 करोड़ से कुछ और सोचते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा अमार साहब, जियो ने माफ़ी मांग ली है, कल उनके न्यूज़पेपर में भी ये बाकायदा तौर पे छपी खबर, और अब आपको क्या लगता है कि जियो बहाल हो जाएगा? अच्छा, जियो ने बहुत एहसन तरीके से माफ़ी मांगी है और उन्होंने अखबारात में वो चीज़ छाप दी है, और उसमें सबसे अच्छी बात ये है गैर मशरूत माफ़ी मांगी गई है। उन्होंने कंडीशनल नहीं किया कि ये होगा, वो होगा, ये होगा। उनका नहीं, ये गैर मशरूत माफ़ी है। और फिर देखिए, माफ़ी का तो हुक्म भी है ना कि अगर कोई शख्स अपनी गलती करता है, जानबूझ के उन्होंने नहीं किया, ये मैं बड़े वसूख से कहता हूँ कि ये एक गलती उनसे हुई है, बड़ी मेजर गलती हुई है, लेकिन ये नहीं कह सकते कि ये उन्होंने जानबूझ के उनसे गलती से हुआ है। और जिस तरह उन्होंने माफ़ी मांगी है उसको सबने अप्रिशिएट किया, ख़ास तौर पे मजहबी हलकों ने। बिल्कुल ठीक है ना, अगर उनकी जानिब से एतराज़ होता तो फिर और सोचे, मजहबी हलकों ने उसकी तारीफ़ की है। तो मुझे यूँ लगता है कि कुछ अरसे तक जियो खुल जाएगा, और हमें नेशनल नैरेटिव बिल्ड करने के लिए उस तरह के बड़े चैनल की ज़रूरत है। आपको पता है, लोग बता रहे हैं कि जब से जियो बंद हुआ है 50% जो है वो न्यूज़ की व्यूअरशिप कम हो गई है। एक आध लोग समझ रहे थे कि शायद बाकी चैनलों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, ARY देखेंगे, समा देखेंगे, ये वो
उस तरह नहीं हुआ। 15% उनमें इंक्रीज हुई है, लेकिन ये नहीं हुआ कि सारी अटेंशन उधर हो गई। तो लोग इसका मतलब है कि एंटरटेनमेंट की तरफ चले गए हैं। इसका मतलब ये है कि अगर आपने नेशनल नैरेटिव पे कोई बात करनी है, कोई पैगाम कौम को देना है, कोई बयानिया बनाना है, तो जियो जैसे चैनल की बड़ी ज़रूरत है। और उनकी गलती, अगर वो सिद्ध के दिल से माफ़ी मांग रहे हैं, शर्मिंदा हैं, तो उसको अब माफ़ हो जाना अच्छा चाहिए। इक़दाम है, बिल्कुल माफ़ कर देना चाहिए। अच्छा हमारे सब गर्मी है, सब गर्मी से बहुत तंग हैं और कहा यह जा रहा है कि तकरीबन नेक्स्ट अगले आने वाले दिनों में 55 तक टेम्परेचर जाएगा। क्लाइमेट चेंज इतना रैपिडली हो रहा है पाकिस्तान के अंदर, तो हुकूमत पाकिस्तान ने या सूबों ने इसके क्या इक़दामात किए हैं? अच्छा, मैंने वो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं सुनी, लेकिन मुझे किसी ने जिक्र किया कि मरीम नवाज़ ने शायद ये कहा है कि 55 डिग्री तक दर्जा हरारत जा सकता है, या फील लाइक 55 होगा। 55 डिग्री टू मच, बहुत ख़तरनाक टेम्परेचर है। इंसानों का क्या बनेगा, गाड़ियाँ पिघल जाती हैं। 55 डिग्री बहुत ज़्यादा। अभी यूरोप में आपने देखा 40 के करीब टेम्परेचर हुआ है, और वहाँ पे अमवात की शरह इतनी बढ़ गई है, और अब उनके वो उसके लिए तैयार नहीं थे। हम यूरोप पे क्रिटिसाइज़ करते रहे हैं, तो क्या हम उसके लिए तैयार हैं? मेरा नहीं ख्याल कि हम उसके लिए, हम ज़्यादा से ज़्यादा ये टीवी पे दिखा देते हैं कि आप नींबू पानी पिएं और अपने आप को हाइड्रेटेड रखें और गर्मी में बाहर ना निकलें। लेकिन जिस शख्स ने मजदूरी से अपने घर के लिए रोज़ी कमानी है, उसको तो ये साइंसें समझ नहीं आती। तो मेरे ख्याल में अगर ये इस तरह की सिचुएशन है, एक नेशनल इमरजेंसी का ऐलान करना चाहिए। सिर्फ गर्मी की बात नहीं है। दूसरा, अभी हमने देखा कि इंडिया में जो सैलाब आए हैं और चाइना में जो सैलाब आए हैं, मैं मौसमियात का एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन अगर उनका रुख पाकिस्तान की जानिब हो गया तो हमारे पास क्या तैयारियाँ हैं? तो उसके लिए हमें तैयार होना चाहिए, और सारी सूबाई हुकूमतों को वफाकी हुकूमत के साथ मिलकर, NDMA के साथ मिलकर कोई ऐसा प्लान करना चाहिए कि हमारा तो जानी माल और वैसे जो माली ज़राए हैं वो बड़े वल्नरेबल हैं, हमें नुकसान हो सकता है। तो उसकी तैयारी अभी से कर लेनी चाहिए। गर्मी हो या सैलाब हो, आम आदमी की ज़िंदगी को महफूज रखने का प्लान अभी से करना चाहिए। जिस वक्त सैलाब आएगा उस वक्त नहीं करना चाहिए। और चाइना ने एक बहुत अच्छी चीज़ की गर्मी से बचाव के लिए कि उन्होंने मिस्टिंग सिस्टम जो है वो नस्ब कर दिया है कि जहाँ जहाँ जो जा रहा होगा वो मिस्ट करता रहेगा, तो वो आसानी होगी वहाँ पे लोगों के लिए। इसी तरह से पाकिस्तान में अगर कोई ऐसा सिस्टम आ जाए तो वो जो मज़दूर लोग हैं या जो बाहर काम करने वाले लोग हैं उनके लिए आसानी हो जाएगी। जी बिल्कुल, ऐसे सिस्टम ट्राई करने चाहिए। जैसे पंजाब में एक सिस्टम स्मॉग को दूर करने के लिए वो स्मॉग फ्री मशीन्स आई हुई हैं, उनके साथ काम किया जा रहा है। तो वो होपफुली चीज़ें उससे मौसम की बेहतर होंगी, लेकिन नई टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल की ज़रूरत है। पहली बात तो ये है कि आप उस पर सोचना शुरू करें ना, तब नई टेक्नोलॉजी के ऊपर आएंगे। तो मुझे तो ये लग रहा है कि बहुत लंबी पेशबंदी हमने की नहीं मौसमियात के हवाले से, जिसकी अशद ज़रूरत है। बस अल्लाह हमारे हालों पे रहम करे। अमार साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। नाज़रीन, मुझे और अमार साहब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।